ये माइक है. इतने तुम चिड़चिड़ हो ना, अल्लाह की कसम, तुमने जान के नहीं मुझे बताया. नहीं. Assalamu alaikum. Welcome back to another podcast. Ladies and gentlemen, this is your host Shafi Jaffrey, and with us is our beautiful co-host. Before we start the podcast, was very punctual today. So punctual that she's only an hour and 15 minutes late. I swear I'm not late. We didn't decide the time today. So like I'm not late. Brothers and sisters, I'm not late. Subhan lives an hour and a half away. Subhan, really? on his way to my house today. Subhan is, by the way, the guy who edits the podcast and the person behind the camera. Say hi, Subhan. He's saying hi. Okay. He's behind the camera. He's saying He's hi. an hour and a half away from this house. Okay. He comes before you. Not only that, on the way he got into an accident. And even then he got here before me. Thirdly, he doesn't have his own car. You have your own car. He had to switch the Uber because one of the Ubers got into an accident. So he, like an Iron Man, like a Superman, he sat into another Uber and got here, and he got here before you. How do you feel? Because this By the way, is his work. before you answer, I have other work as well. by the way, I just had before you patience. answer, Yeah, shame on you. Now you may continue. तुम्हें मैं कैमरे में देख के ना स्क्रीन तुमने नोट नहीं किया आज एक बंदा ही चाय पी रहा, तुम नहीं पी हाँ, रही? मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इतनी क्योंकि देर तुम्हें से अब तो अलाउड पता नहीं है ये तुम्हारा मेरे ये सजा फ्राइज है इसने बंद कराए हैं. उसके बाद से मेरी चाय भी बंद हो गई है. तुम चाय पी रहे हो, जूस पी रहे हो? मैं चाय के कप में जूस पी सर जूस. अच्छा शावी का फेवरेट. मुझे कहने लगी थी कि शावीर की फेवरेट पंच लाइन, मतलब 2 साल के बच्चों की नहीं होती, कोई फाट फूट की कोई बात करते तो बच्चा हंस हंस के पागल हो जाता है. इसकी ये फेवरेट पंच लाइन है बचपन से. सर जूस तूने मार फूस बस, और ये हंस हंस के उस पे गिर जाता है, पागल हो जाता है. You guys, you know, ये जो सुंदस ने अभी पूरी डिलीवरी की ना सर जूस तूने मारा फूस. I just want you guys to make that clip and post it on TikTok, please. Just that little clip on the loop back again. Sir juice. Anyways, how are you doing today, Parks? Good, alhamdulillah. आप सुनाओ. Very good. By the way, before we continue on, would really appreciate if you guys take like a couple of seconds and subscribe to the people who haven't subscribed yet. Acha haan, anyways. मैं fit, आप सुनाओ. Good yaar. How's life? Oh, by the way, इतनी excited होने की कोई जरूरत नहीं है. PSL कैंसिल हो गया. हाँ, क्योंकि वो कोविड हो गया ना किसी एक बंदे Yeah. को. तुम्हारी टीम के हुआ था, ज़ल्मी की टीम को हुआ था. Stay away. और आज तुमने मेरा मास्क उतरवाया. मेरी टीम को क्या मतलब? मेरी टीम थोड़ी है ज़ल्मी. माहिरा खान जी की नहीं है? माहिरा खान जी की है, लेकिन माहिरा खान को तो बहुत तुम पहले माहिरा कोविड हो खान चुका है. जी के साथ नहीं गए थे? तो हाँ, उसमें I उनमें did. एंटीबॉडीज बनी है ना, तुम में थोड़ी बनी है. नहीं, okay, so the players are in this bio something bubble. Think. They're in this bubble. They create like a bubble और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते. ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ मैं? Point is like it's metaphorical. नहीं दिखता लगा. Metaphorical है वो. प्लेयर्स को जाने नहीं देते, इस तरह लोगों से इंटरेक्शन नहीं करने देते. जाहिर है. बायोहैजर्ड बबल होता है. क्या होता है यार? Somebody put it in the comments below. But anyways, like the बाउंड्री है उनकी, वो उससे बाहर नहीं जाने देते. होटल में किसी से इंटरेक्ट नहीं करने देते. तो किसी को कोविड होना नहीं चाहिए था. So that means that's a failure on PCB's end and PSL's end कि वो सही तरह अपने प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर सके. प्लेयर्स बाहर गए हैं. In fact, when I was live on TV, तो पता है मैंने क्या बोल दिया था? When I was on live on TV, just 2 days ago, क्योंकि मैं PSL के मैच पे गया था, मैं लाइव था ना. Yeah. Special invitation. Mahira ने इनवाइट किया तो मैंने कहा चलो मैं बिजी तो हूँ लेकिन मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं. तो when I went live on TV, अब मैं वहाँ पे ऐसी हंसी मजाक कह रहा हूँ तो वो मेरे से ऐसी एक सवाल पूछती है. मैंने कहा हाँ I'm having a lot of fun. मैंने तो एक प्लेयर को हाई फाइव भी किया. Obviously I didn't. I was being sarcastic. And on TV she was like off the field players, right? And I'm like, no, on the field players. And she was like, okay. She was like, okay. After we ended the interview, she was like, Shavir, why did you say that? I'm like, what do you mean? What did I say? She was like, that you high-fived the player. I'm like, oh yeah, obviously I was joking. She's like, no, people are going to think it's real. You high-five people, high-five players. Players are not supposed to do that. तुम पे ये हो सकता है, तुम पे वो हो सकता है. इसने लगाया है, मैं बता के आ रही हूँ. मैं पक्का बता रही हूँ जिस बेटा अगर मुझे है तो इस वक्त तुम्हें भी है. और जिसको हाई फाइव किया पागल है बे. मैं मजाक कर रहा था, मैंने किसी को हाई फाइव नहीं किया. अल्लाह की कसम
हाई फाइव शपथ मैंने किसी को हाई फाइव नहीं किया. झूठे ने हाई फाइव किए और ये गया था लाहौर से और इसने हाई फाइव किए और इसने वो लगाया है बीमारी कोविड-19. नहीं यार. कोविड-19 तुम्हें फैंसी लगती ना ऐसे कोविड-19. But yeah, it's really sad. It's all because of you, partner. मतलब कि तुम कवर नहीं कर सकते. Ladies and gentlemen, यार मेरे मुंह पे माइक लगाया क्या पागल. I just want you guys to know that she is totally joking. Don't take her seriously. मैं ये चाहती हूँ कि इसकी छोटी सी स्टोरी की क्लिप बना के put it on the loop and put it on TikTok, YouTube, Insta, everywhere, okay? Come at me. So yeah. अच्छा तुम PSL की लास्ट टाइम को स्टोरी सुनाने लगे थे तुमने. यार मैं PSL की अपनी पूरी स्टोरी सुनाने लगा था. ओ इजी ओके. अल्लाह कसम चाचू हो तुम. ऐसे चाचू दादू. अरे मलाई आ गई मुंह में. यो मलाई नहीं पीती. ये मुझे चाय वाली मलाई अच्छी नहीं लगती. जो चाय के ऊपर चाय की मलाई बन जाती है ना वो अच्छी नहीं लगती. मुझे दूसरी वाली मलाई अच्छी लगती है जो दूध की बनती है. चीनी डाल के खाओ ऐसे ना मस्त फिट हो जाती है. खैर तो मस्त मलाई मार के मलाई के ऊपर मलाई मार के खाओ. अच्छा यार पार्टनर मैं PSL का मैच देखने गया और तू यकीन कर like that was one of the best experiences of my life. You know why? Let me tell you. So basically what happened was I get a call. फोन उठाया ना मैंने. हेलो कॉल करो. नहीं मुझे तो तुम कॉल करो ना पहले मेरा फोन बजेगा. नहीं इस तरह ये तो मेरी आवाज आती है ना. तुम्हारी तो टोट टोट आएगी ना. बेबी डॉल में सोने दी ओ बेबी डॉल में सोने. कोविड-19 की कुछ एहतियाती तदाबीर. हेलो. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. Is it Shavi Jafri speaking? जी yes who? This is Mahira Khan. Mahira, what's up? How's it going, man? Yeah, Woman, great. How are you? Very good, very good. So I was thinking we have a plan. We are going for PSL match. Do you want to come over? I think you should. Yeah. Okay, in Lahore? No. Obviously, dumb. Where are you living? We are doing PSL in Karachi. Karachi? Yeah, it's in Karachi. Do you want me to come to fly to Karachi? Duh, yes. Do I have to pay for my own ticket or are you guys going to sponsor it? I think you'll have to pay yourself. but we'll act like we paid and it was all sponsored. Oh. Can we do that? Is it okay for you? Yeah, that's fine. Okay then. See you tomorrow. See you Good tomorrow. Flight. Bye. Okay, shit. So this is pretty accurate actually. सुबह स्टोरी नहीं पता लेकिन काफी accurate तुमने acting की है. But no, they did pay for the ticket. That I just. क्योंकि असलियत में खाली तुम्हें behind the scenes ही बता सकता हूँ. अच्छा. So yeah. हाँ, तो वो so they paid for the ticket. Yes. So they brought me in. Now when I go to Karachi, we had like a full-on plan. Mahira said that she was going to come and pick us up. अब मैं खाकान ज़रार दानियाल और मीर हम 5 बॉयज़ थे कराची के अंदर ही 12वां खिलाड़ी के जो हम लोग सारे बॉयज़ हैं. बाकी भी थे लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे. सो शी कम्स इन अ वैन टू पिक अस अप. वी गो इन द वैन. मैंने वो पूरा बेसिकली व्लॉग भी बनाया हुआ है. आई एम गोना रिलीज इट. इट वाज वेरी नाइस. बट एनीवेज वी गो टू द मैच एंड अच्छा मुझे नहीं पता था कि मैच पेशावर ज़ल्मी का है कराची के साथ या पता नहीं किसके साथ था. जिसके साथ भी था लेकिन मुझे नहीं पता पेशावर ज़ल्मी का मैच है. नाउ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जावेद अफरीदी एज वेल. The owner of Peshawar Zalmi, who claims that he is not the owner, by the way. I asked him. He's like, I'm not the owner. He's very inspirational. मेरी तो देख के ही वहाँ पे शॉट होगी ना. मैंने कहा पेशावर ज़ल्मी मतलब जावेद अफरीदी भी होगा. And Mahira goes like, okay, let's go to the वो जो VIP उनके वो होते हैं ना जो भी होते हैं हट्स होते हैं ग्राउंड के अंदर ही होते हैं. वो ऊपर ही होते हैं बिल्कुल स्टेडियम के साथ. मैंने कहा अच्छा. So we just start walking to पेशावर ज़ल्मी का वो जो होता है कॉर्नर होता है. हम लोग वहाँ पे वॉक कर रहे हैं. जावेद अफरीदी नजर आया. मैंने कहा शिट जावेद अफरीदी. हम पास जाते जा रहे हैं. जावेद अफरीदी बड़ा होता जा रहा है. सही बात है. But yeah man, that was like so cool. And not only that, then they told us they're like, so basically we have 30 million live viewers right now and you guys are gonna go live. She told that to Mahira Khan. So Mahira Khan pulled me and Daniel and she was like, I want you guys to be with me when I go live. So then we all went live. And for the first time I was live on television where 30 million people were watching.
फिर तुमने ये ब्लंडर मार दिया, हाई फाइव। फिर मैंने ये हाई फाइव वाला ब्लंडर मार दिया. आई होप दे कट इट यू आउट. डोंट डिजर्व टू बी लाइव ऑन टीवी. हाँ, बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये स्टोरी मैंने सुनाई इसलिए बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू बी लाइव ऑन टेलीविजन एक्चुअली. मतलब कि तुम प्लान्ड चीजें कर सकते हो. मैं हाँ, मैं स्क्रिप्टेड चीजें मैं बहुत आराम से कर लेता हूं. चीजों से याद आया कि हाउस योर व्लॉग्स गोइंग. बाय द वे स्क्रिप्टेड चीजों से याद आया, तुम नहीं मैं कहने लगा था तुम बीप के व्लॉग्स देखती हो, लेकिन नहीं. किसके? मैं क्या बताऊं, पता नहीं. यार क्या चिच्चड़ इंसान है. मैं क्या कहने लगी थी कि हम लोग का ये इतना non-scripted what's the word? Unscripted? Unplanned, unscripted, yes. होता है ना, तो हम लोग बस लिटरली आके हम लोग ये करते हैं, मैं यहाँ गेट से एंटर होती हूँ, वहाँ दरवाजे से बाहर आते हैं, हम लोग बैठते हैं और बस ये हमारी रैंडम बातें शुरू हो जाती है. उस दिन एक क्लिनिक पे आए वो लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, कोई न्यूज़ चैनल वाले थे. मेरा What? नहीं, लाइक मेरा इस तरह नहीं, वो क्लिनिक वालों का इंटरव्यू नहीं, मेरा नहीं, लाइक क्लिनिक वालों का इंटरव्यू लेने आए हुए थे. मैं क्लिनिक में थी. तुम क्लिनिक पे इंटरव्यूज बुला लेती हो. हाँ ना, अच्छा, वो न्यूज़ वाले आए हुए थे, तो वो सारा Okay. पूछे थे कि अच्छा क्या सीन है, और मैं थी कि कैमरा मेरे सामने था, मैं थी कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोमना सुंदस. और मुझे जो मेरे साथ जो कलीग है मेरे, वो कहते कि मतलब आप तो कैमरा शाय नहीं है ना बिल्कुल. मैं थी हाँ जी, नहीं जी, आई एम डॉक्टर मोमना सुंदस, आई एम डेंटिस्ट, आई फिक्स टीथ. बस. और मैं थी कि अच्छा सही है, क्या सीन है, मतलब कि अच्छा लाइक तुम्हारी लाइक तुम एक्चुअली वो कैमरा शाय हो गई थी. हाँ, मुझे मैं स्टेज फ्राइट हो गया था बेसिकली. स्टेज फ्राइट कह लो, कैमरा शाय कह लो. और मैंने बस उस दिन रियलाइज़ किया था कि यार मैं तुम्हारे साथ बैठ के, या हमारा अपना सीन, शायद पूरे एक सराउंडिंग्स इतनी मैटर करती हैं कि बिल्कुल मुझसे उस टाइम नहीं बोला गया. और सब सोचे थे कि मतलब आप YouTube पे भी कैमरे से ही जाती हो. You know why that is? I think पता ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं और तुम बात करते हैं ना, तो हम इमेजिन करते हैं खाली हम दोनों बात करें और कोई नहीं सुन रहा. कोई भी नहीं है. शुरू में याद है हम लोग लोगों को भी हटा देते थे, हाशिर वगैरह यहाँ बैठते थे, हम होते थे कि यार हम लोग ने बातें करनी, हमने बातें करनी, उठ के जाओ यार, यहाँ से हमारी पर्सनल बात है. वो अलग बात है कि इसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पर्सनल बात है. बातें पूरी दुनिया सुन रही है, बट डिफरेंट है. तो but yeah, you're right about that, and that's actually weird, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कभी भी प्लान नहीं करते हैं. हम लोग आके बैठते हैं और हम लोग बोलना शुरू हो जाते हैं और कोई ना कोई बात निकल आती है. और हम लोग जब प्लान करते हैं कि अच्छा जिस टॉपिक पे बात करनी है, वो टॉपिक हमारा 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलता. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा हुआ था, सुबह से मैं सोच रहा था PSL की बात करनी, PSL की बात, साला उल्लू का पट्टा 12 मिनट इनटू द पॉडकास्ट एंड PSL इज डन. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू थिंक कि हम अगली बात क्या करें. बट या करो कोई अगली बात जल्दी. यार मुझे एक लड़की ने मेंशन किया था, DM किया था कि मैं मेंशन करूं कि आजकल लोग टीचर्स को कुछ भी नहीं समझते. लाइक आजकल प्रिंसिपल्स वगैरह टीचर्स को कुछ नहीं समझते, क्योंकि प्रिंसिपल्स वगैरह अब व्हाट आई थिंक इज़ अब प्रिंसिपल स्कूल्स वगैरह जो हैं, ये बिजनेस बनता जा रहा है. समझ रहे हो? अच्छे बच्चे लेंगे आप लोग, वो अच्छा पे करेंगे, आप अच्छा स्कूल बनाओ, वो अच्छा पे करेंगे. जो पेरेंट चाहता है उसका बच्चा करे, टीचर्स वही करवाएं. अगर बच्चा नहीं कर रहा, तो अगर वो नहीं कर रहा तो आपने उसको पास करना ही करना है. बहुत सारे स्कूल्स में ये वाली चीज़ होती है. मुझे एक लड़की ने DM किया था कि मैं टीचर हूँ और मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रही हूँ, और मैं ऑडिटोरियम से जा रही थी या मैं कहाँ से जा रही थी, और एक बच्ची ने मुझे रोक लिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि वो नहीं होते मैनेजमेंट में जो बच्चियाँ होते हैं. उसने मुझे रोक लिया, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया. फिर वो पूरा सारा केस जब प्रिंसिपल के पास गया, तो प्रिंसिपल ने टीचर से कहा कि आपने क्यों आप क्यों जा रही थी वहाँ से, अगर आपको उसने रोका है मैनेजमेंट ने या बच्ची ने, तो उसने बताया कि इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है. मैं रुक जाती हूँ, ऑब्वियसली बात है, और मैं किसी इमरजेंसी से ही जा रही थी. और जो भी सीन था, मुझे स्टोरी पूरी इस तरह याद नहीं, बट उसने ये बताया कि उसने मुझे मेरे शायद पाँव पे भी पाँव मारा ज़ोर से, बच्ची ने टीचर के. और जाके बस प्रिंसिपल को ये था कि अच्छा आपको नहीं पता कि वो किसकी बेटी है, या आपको नहीं पता कि ये चीज़. तो आई थिंक इट्स फाइनली टाइम के स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स से रिवेंज लें. क्योंकि देयर वाज अ टाइम नहीं यार जब टीचर्स ने बहुत बच्चों को मारा है. आई थिंक इट शुड बी द अदर वे अराउंड नाउ. नो, आई एम एब्सोल्युटली जोकिंग, प्लीज. नहीं यार, बड़ी गलत बात है. सार्कास्टिक ना ले लेना, इसको रियल ना समझ लेना. आई वाज बीइंग सार्कास्टिक ना ले लेना. आज एक बंदे से बोला नहीं जा रहा कैमरे में. बट तो पता है सीन क्या है? सीन ये है कि एजुकेशन सिस्टम इज अ बिजनेस. End of conversation. Schooling is actually business. If you want to be educated, you don't even have to go to school. You can educate yourself through so many free different mediums,
nowadays आप लोग अपने आप को like people like you and I, हम लोग ने शायद स्कूल से कम सीखा और प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखा है, राइट? तुम्हारी डेंटिस्ट्री है, तुमने स्कूलिंग में खाली थ्योरी पढ़ी है, तुमने एक्चुअल एजुकेशन ली है जब तुमने काम करना शुरू किया, जब तुम्हें एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ. एंड आई थिंक that's what it comes down to. I feel like schooling is but नहीं पार्टनर, जो छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूलिंग है, जो आपकी ग्रोइंग एज है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग की और ये सारी चीज़ें. मतलब हाँ, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती. एजुकेशन की मैं लर्निंग का भी बता रही हूँ कि कोई ना कोई इस तरह का आप होम स्कूलिंग करो या कोई ऐसी चीज़ करो कि टीचर्स हों आपके सर पे, कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको पढ़ा रहा हो ये चीज़ें. तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि प्रिंसिपल टीचर्स, क्योंकि वही बात है कि बिजनेस चल रहा है और आप चाहते हो कि आपका ये प्रोडक्ट बिके, आपकी ये चीज़ बिके, और आप अपने वर्कर्स की वो नहीं देख रहे कि वो वर्कर खुश है या नहीं है. चलो ना देखो, खुशी देखने का किसके पास कितना टाइम है, बट नो आई एग्री विथ यू. और एक और इसकी चीज़ ये है कि खाली एक एस्पेक्ट ना देखो कि स्टाफ के साथ बदतमीज़ी हो रही है, ये भी देखो कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो डे 1 से प्रेशर डाला जाता है. फॉर एग्जांपल अब देखो मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, ठीक है. जब मैं अपनी एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्नड इज़ टू बी इन अ क्रिएटिव फील्ड यू कैन नॉट बी कंपेटिटिव और जेलस. अगर आप क्रिएटिव हो ना, आप कंपेटिटिव और जेलस नहीं हो सकते, बिकॉज दैट्स हानिकारक फॉर योर माइंड. वो नहीं आता वो जो इंडियन फिल्में देखते होगे, हानिकारक. इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? खतरनाक. हिंदू. सॉरी. हाउ डज अ लैंग्वेज मेक यू Hindu, Indian, follow a different religion? Indian. Hashtag logic. Indian. Sundas logic. Hashtag Indian. यार तुम कितनी मीन हो यार. यार इंडियन कह रही हो क्या? इसमें गाली तो नहीं है? इंडियन गाली है? नहीं, but why are you saying Indian? कहते हैं ना. What if there is some Indian watching and he is offended by it? तो मैं बेइज्जती तो नहीं कर रही, मैं कराची को किरांची कहती हूँ, मैं बेइज्जती तो नहीं कर रही. जो लोग जिस तरह बोलते हैं मैं वो कर रही हूँ. ये मुझे इतना पोर्ट्रे करता है इस तरह. मैं तुम्हारी खाकी की तमिल वालों की तरह बोल रही हूँ, वो बोलते हैं. तमिल वाले किस तरह बोलते हैं? यल्ला. यल्ला तो अभी बोलते. यल्ला अभी भी. ओ ये तो अरबी बोलते हैं. इल्ले है वो. इल्ले ये नारास्कला. हाँ, अच्छा, हाँ. तो अब तुमने उनकी बेइज्जती की है? नहीं. तो बस मतलब मैंने तो शाहरुख खान की कॉपी की है. ये नारास्कला. अच्छा खैर, तुम क्या बता रहे थे? Pussycat. Where have you been? Have you been London to see the Queen? यार वो बहुत जबरदस्त सीन है यार. You know, someday I want to replicate that scene. Lovely. और मैं साइड पे खड़ी होकर करना चाहती हूँ. वाह क्या एक्टिंग करता है. 12वां खिलाड़ी में मुझे लगता है मैं साइड पे खड़ी होकर ये करूँगी. वाह क्या एक्टिंग करता है. हम पूरा वुल्फ क्रू खड़ा होगा साइड पे और हम शाहवीर को देख शाहवीर के हर सीन पे कहेंगे वाह क्या एक्टिंग करता है. वाह क्या फ्लाइंग कर रहा है. वाह क्या फ्लाइंग कर रहा है. वाह क्या एक्टिंग करता है. मेरा रोल क्या है, मेरा डायलॉग क्या है. भागो. यार बड़े बड़े मजेदार सीन होते थे. मुझे लगता है पहले बड़ी फनी मूवीज बनती थी. अब तो इतना टाइम हो गया कोई मूवी नहीं देखी पार्टनर. I know. यार हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात कर रहे थे. हम बात कर रहे थे कि जितना प्रेशर टीचर्स पे होता है उतना स्टूडेंट्स पे होता है, बट फिर भी स्टूडेंट्स को अपना प्रेशर अपने तक रखना चाहिए. टीचर्स की रिस्पेक्ट अलग होती है, वो करनी चाहिए. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के प्रेशर की. चलो एक गेम खेलते हैं. तुम वो सारे आर्ग्यूमेंट्स दो जो कि तुम्हें लगते हैं कि सही है, जो कि टीचर्स की फेवर में, और मैं वो सारे आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ जो मुझे लगते हैं सही है, जो कि स्टूडेंट्स की फेवर में. यू वांट टू प्ले दैट गेम? नो. ओके. मतलब मुझे बस ये लगता है टीचर्स के फेवर में टीचर्स की रिस्पेक्ट करो यार. मतलब कौन तुम्हें कहता है? हु इज सेइंग? देखो ना, टीचर का तो वैसे भी दर्जा हमारे रिलीजन के अंदर माँ बाप के बराबर का है, ठीक है. एज अ टीचर, लाइक द टीचर टीचेस यू हाउ टू नॉट ओनली लिव लाइफ but how to spend your life, spend the rest of your life. That's the job of a teacher. Okay. Your parents are your teachers as well. Your friends are your teachers, जिनसे आप इंस्पायर होते हो, पीयर प्रेशर में उल्टे सीधे काम करते हो. They're teaching you the bad things or the good things, depends के. So लेकिन ये नहीं कि आपका दोस्त आपका बाप हो जाता है. ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ. दोस्त को बाप ना बना ले. But I feel like एजुकेशनल स्कूलिंग सिस्टम जो है मेरे ख्याल से ब्रोकन है. मेरे ख्याल से पूरा सिस्टम ही एक चीज़ पे फोकस्ड है. वो ये है कि वैसे जस्ट वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर पूरा सिस्टम एक चीज़ पे फोकस है कि
how can we basically educate people enough to just write an exam? अब नहीं होता पार्टनर ये. I have, trust me. बहुत मतलब जो आपकी जो प्राइमरी स्कूलिंग है उसमें अब आपकी इतनी क्रिएटिव चीज़ें करना शुरू कर दी हैं, इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं कि उसमें अब आपको ABCD सिखाती नहीं है वो. अब आपको वो नहीं होता कि टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया A B और C और वो बच्चे ने कॉपी कर लिया और बस वो लिखेंगे ABCD, लेकिन वो ईशान नंद किशोर अवस्थी की तरह पहला हाथी बनाएंगे. तो मुझे लगता है कि जिस तरह ईशान नंद किशोर अवस्थी ने सीखा था क्रिएटिविटी से, वो अपने एजुकेशन उससे अपनी इम्प्लीमेंट की थी उस पर. तो मुझे लगता है कि अब जो है अच्छे स्कूल्स अच्छी जगहों पे यही हो रहा है. I hope that's the thing. Sometimes I really wish that मेरा passion in teaching की तरफ उतना होता जितना filming की तरफ है. I would love to be a teacher. I would absolutely. I feel like I would be one of those teachers जिसको students जो है ना वो कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत शुगली है. Like they don't even consider me a teacher. They consider me a friend. And I stayed like one of my best teachers was basically, there are two best teachers that I can remember. One was Sir Samuel, BDC में होते थे, सही है. उनको सही तरह से उर्दू भी नहीं आती थी, वो वेस्ट इंडियन थे, सही है. But one of the favorite characters, you know why? Because he was funny. वो मजाक में नहीं हंसते हंसते चीज़ें सिखाते थे और वो समझ आती थी क्योंकि इंसान इंटरेस्ट लेता था. मुझे आज तक याद है कि मुझे लाइट स्पीड का कॉन्सेप्ट सर सैम्यूल ने सिखाया और वो इस तरह सिखाया, वो कहता लाइट इतनी तेज है मेरे दोस्त, यहाँ से खिड़की खोलोगे 1 सेकंड में साला लंदन तक पहुंच जाएगी. मैंने कहा यार ये एनालॉजी तो बेस्ट है ब्रो. ऐसे इस चीज को इमेजिन करना कितना इजी है, बट द वे ही सेड इट आई स्टिल रिमेंबर इट. तो कुछ टीचर्स आपके दिल में इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं. इसी तरह एक टीचर थे मेरे जो सेकंड माय सेकंड फेवरेट, प्रॉब्ली लाइक माय फर्स्ट फेवरेट टीचर वाज इन कनाडा. ही वाज एन इंडियन who happened to be not a school teacher. मैं दरअसल कुछ कोर्सेज फेल कर गया था, तो मुझे वो कोर्सेज दोबारा लेने के लिए ना मैंने नाइट स्कूल कर लिया था. कनाडा में कॉन्सेप्ट होता है नाइट स्कूल का कि अगर आपने सेमेस्टर रिपीट नहीं करना तो आप नाइट स्कूल करके ना जब आपकी कवर कर लो जल्दी से, जब तक स्कूल अगला सेमेस्टर शुरू नहीं होता, बस 1-2 वीक्स होते हैं, आप उसके अंदर ना वो एक कोर्स कंप्लीट कर लो दिन रात जाके, यानी रात जाके नाइट स्कूल है ना. सो नाइट स्कूल की बात डर गया. So the teacher over there, that dude, when we left the class, the entire class, when it was the last day, most of the girls in the class were crying and one guy was crying. Can you imagine who the guy was? This guy right here. We were all crying because I had never experienced that level of teaching. He was our friend. He became our, and 2-3 weeks he became our best friends. I used to look forward to the class and it was just not me, everybody in the class. उसने vibe ऐसी create की हुई थी class की, उसके हंसी मजाक से, उसके he used to tell us, don't call me sir, don't call me teacher, I'm your friend. Mister. Call me, don't even call me mister, call me by the name. We used to call him by the name. तुम लोग भी नहीं इस तरह नहीं, ए नहीं, लेकिन वहाँ पे ना सर और सर जो है ना वहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज है कनाडा के अंदर. जैसे सर तो एक वो होता है, टाइटल होता है. सर एक टाइटल होता है. सर एक उसको क्या मिला हुआ है, उसको एक टाइटल, हाँ टाइटल होता है ना. सर एक टाइटल होता है, जैसे लॉर्ड एक टाइटल होता है. अगर आपका कहीं पे कोई लैंड है, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड में अगर आपका लैंड आ जाता है तो आप न्यूजीलैंड के लॉर्ड बन जाते हो. अच्छा. हाँ, लॉर्ड something Lord of the New Zealand. So sir is a title, say, which is gifted to you, so you shouldn't throw it around at your teachers. If you want to call your teacher, you call him Mr. that, Mr. this. लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है कि that's disrespectful. मैं तो अपने पेशेंट्स को भी सर और मिस कहती हूँ, मैम. हाँ, I'm like मैम. Out of respect ना, मिस कहती हूँ. मिस एक्चुअली जो टाइटल्स है ना, जो रिस्पेक्टफुल टाइटल्स हैं वो है मिस्टर एंड मिस या मिसेस. नहीं, मैं अंकलों को सर कहती हूँ और आंटियों को मिस कहती हूँ. मैम आप. हाँ नहीं. अच्छा, now that I actually remember, in Canada they don't throw sir around at all. आप कहीं भी जाते हो, मिस्टर, how may I help you? How may I help you, मिस्टर? Mr. आप अगर रेस्टोरेंट जाते हो ना, you know the waiters or the waitresses, they come up to you and the first thing they do is they introduce themselves, and you know what they do next? They ask you आपका नाम क्या है, because then they'll write it down and when they come up to you they go like, Mr. Jaffrey, what would you like to have? You know, they call your name but just put like a Mr.
और वहाँ पे टीचर्स के साथ भी यही होता है. अच्छा. So yeah. तो तुम उनका बता रहे थे. यार हमारे माइक्स ऐसे क्यों नहीं होते? होते हैं ना कहीं पे होते हैं ना माइक्स ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं. वो क्या होते हैं? WWE में होता है वो. आय हाय WWE उसके यूं करके आते हैं माइक्स. Feel some more. यार तुम्हारा फेवरेट रेसलर कौन सा था? तुम्हारा फेवरेट रेसलर कौन सा था? The Rock. क्या? The Rock. Dwayne Johnson. हमारे टाइम पे वो था ना. बोल लूं मैं? हाँ बोल लो. ट्रिपल ए, जॉन सीना जी. मुझे वो अच्छा लगता था. रैंडी ऑर्टन बड़े नाक वाला होता था. रैंडी ऑर्टन फिन्ना सा होता था. मोटे होंठ होते थे. ऐसा गंजा सा फिन्ना सा था ना वो था. और मुझे लास्ट और मुझे वो जो हम लोग तो मुझे खिलाते थे ना. टेकन 3 होती थी. टेकन जो भी टेकन उसमें मैं वो लेती थी बुकर टी. वो बुकर टी ये लोग मुझे मार रहे होते थे और मैं ना बुकर टी के उन्होंने मुझे 3 बटन दबाए हुए थे. इसने क्या पता नहीं वो घूमना शुरू हो जाता. हेलीकॉप्टर बन जाता था वो. ये लोग फुल सीरियस होके मुझे मार रहे होते थे और मैं कलाबाजियां करने लग जाती थी. My favorite wrestler was The Rock, Dwayne Johnson, and my second favorite wrestler has to be Rey Mysterio. हाँ, Rey Mysterio मास्क के साथ आया था छोटा सा. He was revolutionary, bro. When Rey Mysterio, a lot of people don't know, or a lot of people actually don't know. एक था ट्रिपल एच और शॉन माइकल का जोड़. क्या हुआ? पिछले दिनों किसी ने मीम लगाई हुई थी कि हम लोग अपने बच्चे का नाम सोच रहे. हमें नाम एडवाइस करें. हैज टू स्टार्ट विद रे. एक बंदे ने रे मिस्टीरियो. तुम्हारा फेवरेट कौन सा था? बताती रही हूँ. ये था रैंडी ऑर्टन था. और मुझे बड़ी देर बाद जाके पता चला कि अंडरटेकर और केन भाई थे. कजन्स थे. हाँ नहीं भाई थे. नहीं भाई नहीं थे. कजन्स थे. और दोनों नो थे वो कजन्स. इमीडिएट नहीं थे. कजन्स थे. और दोनों ने अपनी लुक्स एक साथ चेंज की थी ना. अंडरटेकर भी फुल वो आंखें आईबॉल्स ऊपर ले जाता था. केन ने अपना मास्क उतार दिया था. चेनों में आता था. यार मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. शॉन माइकल और ट्रिपल एच. लेकिन उससे ज्यादा अच्छे मुझे वो लगते थे. पता है कौन से? The Rock and Stone Cold की जो फाइट होती थी. Stone Cold मुझे नहीं याद. was legendary. Stone Cold मुझे नहीं याद. बट मुझे ट्रिपल एच का वो अच्छा लगता था. वो जो पानी फेंकता था ऊपर. फुल ऊपर ना है ना. वो फेंकता था. रॉक आके करता था है ना. कहते थे अंडर आर्म स्मेल करता अपनी. करता था ना ऐसे. बगले सूंघ रहा है. तुम लोग ही कहते थे. ऐसे आके करता था. नहीं वो तो यूं करके खड़ा हो जाता था ना ऊपर. भी करता था कुछ. हाँ ऐसे वो स्मेल करता था. तो ये सारे होते थे. और मुझे याद है बुकर टी मैं उसमें लेती थी. टेकन जो भी है उसमें. और वैसे मुझे रैंडी ऑर्टन पसंद था. बुकर टी, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच. एक होता था बुगी मैन गंदा वर्म नहीं. बुगी मैन होता था. वर्म्स खाता हुआ आता था वो. और एक और होता था. छोटे से अंकल होते थे और वो ना फुल फाइट कर रहे होते थे. और जो वो बिल्कुल हारने वाले होते थे ना तो उनका नीचे से ना स्टेज के नीचे से उसने एक ड्वार्फ बिठाया हुआ था. वो क्या नाम था उसका? हाँ हॉर्न स्वॉलन. और बंदे का खुद का क्या नाम था? वो बच्चा निकल के ना वो अंकल निकल के वो मारना शुरू कर देता था. फिर उसको जिता देता था. तो वो बड़ा फन टाइम होता था रेसलिंग देखने का. सोचो भाई को ना कल ऐसे शुगल में ना वो डैड जोक्स भेज रहा था. डैड जोक्स पता है क्या होते हैं? जो इतने फजूल जोक्स होते हैं जिनको बस सुन के बहुत हंसी आती. तो मैंने बोला तो मैंने जोक मौसम भाई को भेजा. इनका स्टूडेंट बोलता है मिस कैन आई गो टू द बाथरूम. मिस कहती है इट्स मे. स्टूडेंट कहता है नो मिस इज जेन्युइनली. हाँ ये मैंने सुना है. यार मैं अपना What concert costs 45 cents? What concert? Cost 45 cents. वो जो है सेंट वालों का क्या? बताओ. 50 cents featuring Nickelback. You know what a nickel is? Nickel? 5 cents. Nickelback is a singer. यार मैं अपना खाना ऑर्डर कर रही हूँ. हैं? बाहर से?
हाँ. घर में बना हुआ है कुछ? नहीं, मैं जाते हुए क्लिनिक जाते हुए पिक करूंगी. अभी कर लेते हैं, अभी पॉडकास्ट तो कर लो. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट आवर शो. वी आर ऑर्डरिंग फूड. So I got a Hum TV drama offer. What? Yeah. फिर उन्होंने ऑफर की कि आप कर लो, तुमने उनको ऑफर की कि मैं करूंगा, लेकिन मैंने उनको कहा आप यूट्यूबर बन जाए. उन्होंने कहा आप हम टीवी पे. मैंने कहा पहले आप नहीं. तो तुमने क्या, कौन सा ड्रामा, क्या सीन? यार it was by Abdullah Kadwani and no, actually I don't want to say any names, but okay. like it was really good people. But I can tell you after the show. Okay, you know? हाँ, ये भी है वैसे. But they were really nice people, and I spoke to them over the phone. Sounded like a great team and everything, but it just didn't align with what I wanted to do at the moment. Like I told them that I don't mind doing TV as long as it's something that I like. I want to stay away from some conventional stereotypical drama stories. They respected that. अच्छा, तो तुमने I hope they respected that. I hope they're not mad नहीं, at me. तो वो नॉर्मल वही था, पुराने टाइप. Well, I don't want to say what it was, but it seemed conventional to me, so that's why I kind of, I'm just waiting to do something that is a little different, a little unique. Like what? Like honestly, I just want to try on different genres. Like 12वां खिलाड़ी हो गया. अब 12वां खिलाड़ी के बाद what else do you want to try? I would love to try comedy. Comedy you've already, अच्छा नहीं, you haven't done. I'd love to try comedy. I feel like something like Friends, a soap opera. I think I would love that. तुम्हें याद है तुमने एक पूरा प्लान किया था एक यहाँ पे घर का? Yeah. ये इसमें मार्च में, पिछले लॉकडाउन में, फर्स्ट वेव जो बिल्कुल आई थी, क्या किया उसका? मेरा क्या रोल था? लिखा हुआ सब कुछ. मेरा क्या रोल था उसमें? यार I don't even remember किसका क्या I रोल don't था. remember you as well. But yeah, we did I have plan to. something. फिर सुनाओ यार, क्या सीन है? पापा ने उससे मुझे एक जोक भेजा. मैंने पापा से कहा पापा वो ये ना मुझे आप आगे मुझे व्हाट्सएप पे भेजे. तो पापा ने ना मुझे व्हाट्सएप पे भेजा. मैं सोच रहा हूँ कि इस जोक के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊँ. अब मुझे उर्दू सही तरह से पढ़नी नहीं आती. खराब कर दोगे तुम. सही है, चलो तुम पढ़ो और तुम ऊंचा पढ़ के सुनाओ. जंग के दौरान फौजी ने हमसाये को फ़ोन किया और घर के हालात पूछे. हमसाया: बाकी सब खैरियत है, लेकिन आपका कुत्ता मर गया है. फौजी: मेरा कुत्ता मर गया, मगर कैसे? हमसाया: वो आपके मरे हुए घोड़े का गोश्त खाकर कैसे जिंदा रह सकता था? फौजी: तो मेरा घोड़ा भी मर गया. हमसाया: भूख से मर गया जनाब, भूख से. फौजी: मगर मैंने तो चंद दिन पहले पैसे भिजवाए थे. हमसाया: वो तो आपके वालिदा के कफन पर. अस्तगफिरुल्लाह. फौजी: तो क्या मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया है? हमसाया: जी हाँ, वो 2 माह के जी हाँ, वो 2 माह के पोते का गम कैसे बर्दाश्त करती है? फौजी: ओ खुदाया, तो क्या मेरा बच्चा भी मर गया? हमसाया: जी हाँ, माँ के जी हाँ, माँ के बगैर भला बच्चा कैसे जिंदा रहता? फौजी: तो मेरी बीवी भी चल बसी. हमसाया: जनाब, घर की छत गिरी थी, वो कैसे बचती? बाकी सब खैरियत है. नीचे शिबली फराज बना हुआ है और लिखा हुआ है सिवाय महंगाई के तमाम अशारिये मुस्बत है. अशार बेमुस पता नहीं क्या. So yeah, I wanted to recreate this. मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे. अच्छा, मुझे लगा एंड में कहेगा कि नहीं वो आप, मैं एक गलत घर का आपको बता रहा हूँ या ये तो किसी और की स्टोरी है. मुझे लगा था कि वो कोई और फौजी समझा होगा उसको. उसका पूरा सीन ही है ना कि वो एक चीज आती है, एक चीज उसको रियलाइज होती है, बेचारे के कुत्ता मरा था, उसके बाद उसका पूरा खानदान ही उजड़ गया. जैसे वो वेलकम में वो कहता है मेरा पूरा खानदान मर जाएगा, मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा. यार वेलकम बहुत अच्छी फिल्म थी. वेलकम बहुत फिल्म से ना, मैं पहले जब तुमने वो बोला था ना, उसका कौन सी फिल्म थी आमिर खान की, तारे ज़मीन पे. अच्छा, तारे ज़मीन पे. मुझे उससे याद आया कि यार कुछ फिल्म्स होती हैं that actually change the way you see life a little. They start changing beliefs in you. Have you ever seen a film that has done that for you?
नो ऐसे मस्त जिंदगी सख्त किस्म की है ना, बदलती नहीं है। नहीं लेकिन हाँ मुझे नहीं याद आ रहा कोई ऐसी मूवी, बट मुझे मैं जब बहुत ज़्यादा वो होती हूँ तो मुझे ये 3 Idiots बहुत मोटिवेट करती है जब मैं बहुत नालायक फील करती हूँ। नहीं, fair enough. For me, it's been I feel Welcome. like 2 movies that I can never watch because they're so painful to watch. One of them is Ghajini, one of them is Titanic. I never watched those 2 films because I never watched those 2 films because they're so good in portraying what they were portraying. Titanic Acha. or Ghajini, they're so painful to watch. And गजनी 2 मैंने भी to एक 3 दफे movies देखी है। that literally changed me personally a little, motivated me, taught me some things. One of them was Tare Zameen Par, one of them was 3 Idiots, and ये दो हैं। the third one was PK. हाँ पीके, All 3 were पीके by बहुत अच्छी Amir थी Khan, वाकई। आमिर and खान तो all नेक्स्ट 3 लेवल है। were by, I don't know all 3, but the 2 of the later ones were by Rajkumar Hirani, अच्छा the director. He makes very meaningful film, like social issues pe with comedy and हाँ। action, and but it's completely मुन्ना about भाई a भी तो social issue. राजकुमार हिरानी की थी और Yes, उसमें भी yes, वो वाला yes. सारा मेडिसिन का और Yes. कि वो बंदा बीमार हो जाता है Social और issues उसको पे है ना कि how can you be a good guy and how to look at the world the right way. हाँ, मेरा बेटा मुझे लग रहा है मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों. चाय का पूरा मग अकेले गटक गया है और अभी भी उसको अकेले को नींद आ रही है। और उसमें ये था ना मुन्ना भाई में कि हर चीज़ आप मेडिसिन पे या हर चीज़, क्योंकि लोग वही सारे किताबें पढ़ रहे हैं और हर चीज़ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बंदा एक ठीक नहीं हो रहा। फिर संजय दत्त उस बंदे से बातें करना शुरू कर देता है, माहौल चेंज करता है, उससे फुल हो रही है सारी चीज़ें, इंटरेक्शन शुरू कर देता है और सारी चीज़ें, तो फिर वो ठीक हो जाता है, मतलब बेहतर हो जाता है। Exactly. तो वो वाला इस तरह के पॉइंट्स थे कि आप हम लोग डॉक्टर्स वगैरह इस तरह बन जाते हैं किताबें पढ़ के, और हम लोग वो एक्सपीरियंस की बात या फिर वो वाली चीज़ें नहीं हम लोग करते। राजकुमार हिरानी जो है ना, जो ये फिल्में बनाता है इस तरह की सोशल इश्यूज पे, यू नो व्हाट ही डज, ही ऑलवेज टेक्स एन आउटसाइडर, ही ब्रिंग्स हिम इन टू अ नॉर्मल वर्ल्ड and views the world from an outsider's perspective. For example, Munna Bhai was not a doctor. He comes into the college, disrupts the system of college. 3 Idiots. The student wasn't a student. He was an outsider who comes, he has different ideas, वो देखता ही अलग तरीके से है. PK, alien, comes to the earth, views the world from his own angle कि भाई अच्छा अगर यहाँ पे जो दुनिया चल रही है वो कह रहा है कि ये इंसान बड़े अजीब हैं, यहाँ पे चुम्मा चाटी प्यार वाली सारी चीजें दरवाजे के बंद, हाँ लेकिन अगर मार कुटाई और छुरा सारा वो खुले में ओपन अलाउड है. So he views the world from like a different lens, which is beautiful in its own way. You know, कि all the religions, they talk about religions, कि how are all religions similar yet different. Why are there so many misunderstandings? एक और movie थी, Oh My God, have you guys seen it? No. It was by Paresh Rawal. पारेश रावल ने मूवी बनाई थी? Yep. पारेश Oh My रावल God एक film है, Paresh Rawal actor है उसके अंदर. तो But उसने बनाई तो नहीं। Such a beautiful film. You have to watch यार it. पारेश रावल मेरा फेवरेट है। मेरा भी कसम से. Paresh Rawal actually सारे comedy roles करता, लेकिन before these comedic roles he was like a villain. यार पारेश रावल नेक्स्ट लेवल बंदा है, मुझे बहुत पसंद है। अंडों की फैक्ट्री याद, फार्म हाउस बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी मुर्गियाँ होंगी, वो हजारों अंडे देंगी और कई करोड़ बच्चे, उनके मैं ऑमलेट बना के खाऊंगा। खैर चलो यार एंड करें। हाँ, I think let's end it on Paresh Rawal. Suman, what do you say? Do we have a good show so far? Yeah, it's fine. इसके ये भाई ये he doesn't care, you know, anymore. He just like भाई खत्म कर, मेरे को जाना है। सुभान तुम बाज आ जाओ। हाँ ये भी है। Anyways guys, any closing remarks, partner? No, thank you. Great. Thank you so much for watching the podcast today, guys. Hopefully you guys enjoyed like our homie talk. Bye friends. We will as always Take care. catch you in the next one. ये पिंक पैंथर था ना? 007 था पागल।